का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष रघुवंशी आज आपके लिए लेके आया हूँ प्लेट टेक्टोनिक्स। दिस टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी. Again and again questions have been asked on this topic. On occasions you may have wondered what causes earthquake. If you have wondered how tsunami takes place, how these mountains have been formed, how the trenches have been formed, how the mid-oceanic ridges have been formed, so the answer to this issue is plate tectonics. सबसे important topic है ये जियोमॉर्फोलॉजी का. अगर इस एक टॉपिक को आप करते हैं तो कम से कम हर दूसरे साल एक क्वेश्चन आपको इसमें मिलने ही वाला है. ओके, we will start our topic with the analysis of the previous year question itself. One of the most important thing in preparation is the previous year question. And in my discussion, my classes, I first explain you people the previous year question so that you may understand what would be the scope of the entire discussion. हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, and if you are able to answer previous year questions, then the future question would definitely you would be able to answer. So first we will see the previous year questions. Here are the previous year question which are related with plate tectonics. You can see in 2021 there is one question regarding mountains. So the question says the alignment of major mountain ranges in the world. You have to explain about that. Without plate tectonic you cannot explain this. The next topic is in 2020 the question was geophysical characteristic of circum-Pacific zone. The entire Pacific Ocean and area around Pacific Ocean, there are a whole lot of volcanoes. So the ring of fire is basically nothing but plate tectonic. That is explained by plate tectonics. So you cannot explain that without plate tectonics. Next question is discuss the geophysical characteristic of the, okay, next is define mantle plume. Okay, this point is very important because here you can see the depth at which the UPSC has gone to for asking question in plate tectonics. So this topic, the very mantle plume topic in 2018, that topic is very difficult. Even those who have geography as their optional, it was difficult for them even to answer that during that period. So इतनी डेप्थ तक भी ये जाता है यूपीएससी, तो आपको अपना प्रिपरेशन का लेवल अच्छा रखना होगा. बेसिक जो आपका बुक होता है, वी यूजुअली फॉलो सविंद्र सिंह, बट ऑन ओकेशन अपार्ट फ्रॉम सविंद्र सिंह सम अदर बुक्स, standard books like Stroller etc., the things have been asked from those books. Okay, so very deep question. Again, the formation of thousands of island chains in Indonesia and Philippines, question was asked in 2014. See, it is very difficult, and island chains can only be explained once you have full knowledge of plate tectonics. The very basis of discussing this question is that again and again questions are being asked. Again, very important question, explain the formation of world's fold mountains system located along the margins of the continents. Okay, bring out the association between these global distribution of these mountain and the earthquakes. So you have to explain the relationship between the volcanoes and the mountains. So very tricky question. Okay, so here 2-3 topics are involved. Volcano is involved, earthquake is involved, plate tectonic is involved. Okay, so it's basically a unifying theory which try to merge many things together. With the help of this theory, many of the questions of the geophysical world they are asked. So here are the questions of the previous year. Important question. I have mainly covered question from 2013 onwards because the syllabus was changed after that. Before that, physical geography was not primarily being asked in mains. Okay, so here these questions are from mains point of view. In prelims, virtually anything can be asked. Okay, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है. तो इसके 2013 से पहले का एक क्वेश्चन इसमें मैंने डाला है. आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर. द क्वेश्चन वाज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. So this or how plate tectonic is better one, plate tectonic is an overcome over this theory. So these are the very question which have been asked in the past. So
we have to study in that way so that we can answer these questions. Okay, I have also provided here the suggested question for future preparation also. Here some questions are there. Towards the end of this discussion we will talk about these questions. Okay, so let's start with our theory. For understanding this theory, certain prerequisites are there. कुछ आपसे पूर्वापेक्षाएं हैं. आपको कम से कम वैगनर का जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द थ्योरी. ओके, सेकंड एक्सपेक्टेशन इज दैट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ शुड ऑल्सो बी कंप्लीटेड. मतलब इस टॉपिक को, प्लेट टेक्टोनिक को पढ़ने से पहले आपको इन टॉपिक्स को जो यहाँ पर मेंशन है बोर्ड पर, इनको आपको तैयार करना होगा. अगर इनके तैयार किए बिना अगर आप सीधे प्लेट टेक्टोनिक्स पे पहुंच जाते हैं तो आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है. और इसके अलावा एक बेसिक मैपिंग वाला भी आपको थोड़ा सा देखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल जितने भी होंगे, लेट्स से सपोज द क्वेश्चन इज अबाउट the island chains of Indonesia and Philippines, how they have been formed. Suppose you are explaining those questions with the help of plate tectonics. So mapping में आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पढ़ेंगे. तो जब भी आप इस टॉपिक को पढ़े तो एक बार बेसिक मैप जरूर देख लें, उसके बाद ही इस टॉपिक पे आप जाएंगे. तो ये हमारी कुछ प्रीरिक्विसाइट्स हैं. इन दिस क्लास ऑल्सो आई एम कंसिडरिंग दैट यू हैव गॉन थ्रू दीज टॉपिक्स, और इफ यू हैव नॉट already gone through, you can check the videos regarding these topics and then only come over the plate tectonics. Okay, so let's move to the theory. Here one more thing before this theory. For your base preparation, one thing you have to do is you have to make synopsis of every topic, so that while answering the question in the main examination you may not forget the very important point. So here is the flow in which we will discuss this entire theory. So introduction, in the introduction we will talk about plate, what is plate, we will define plate, then we will talk about the tectonics. Here are certain things which are a bit factual and conceptual too. Okay, there are two parts in the discussion. One is regarding the objective parts for the prelims preparation, and other is regarding the answers being written for the main examination. So these two of the issues are there. Okay, so it's a discussion for pre-cum mains. So in our discussion we will consider both of the issue. Okay, at places I will let you know what point is important for prelims or for mains. So here in the synopsis, first we'll talk about the plate, then we'll talk about the tectonics, then we'll discuss about what is theory, what is model, what is fact. Here are certain issues. Okay, then here the history. Okay, we will talk about the historical aspect also, how this issue has been evolved. Even after Wagner's discussion was complete, many of the theories, many of the hypotheses have evolved on the basis of which this model of plate tectonics has emerged. So इस पे हम हिस्ट्री पे बात करेंगे, उसके बाद हम assumption, अब चूंकि अभी हम आगे बात करना है, हमको ये फैक्ट और थ्योरी क्या होता है, इसलिए अभी मैं यहाँ पे assumption या hypothesis क्या होती है, postulates क्या होती है, उसको अभी मैं यहाँ नहीं बताऊंगा. पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, फिर हम बात करेंगे types of plates on the basis of structure, on the basis of size, then the reasons of the movement of plate. Okay, different reasons are there, convectional currents are there. Okay, hotspot mantle plume model is there, and apart from that slab push pull model is also there. So we'll talk about the reasons of movement, then further the types of plate movement with respect to rotation of earth. रोटेशनल एक्सिस है अर्थ का, तो हमें पता है कि जैसे अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला प्लेट है और नीचे उसके एस्थेनोस्फीयर है, तो अगर अर्थ रोटेट कर रहा है तो जो रोटेशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट मूवमेंट करते हैं. तो एक डायरेक्शन ये होता है विद रिस्पेक्ट टू द रिलेटिव मूवमेंट, तो एक दूसरे के सापेक्षिक भी प्लेटों में मूवमेंट होगा. तो ये तीन तरीके का मूवमेंट होगा. अभी आप समझेंगे, मैंने एक फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि आप आगे जो हमारा डिस्कशन होगा उसमें आपको लिंक बना रहे कि किसके बाद क्या आने वाला है. ओके, सो इन द बिगिनिंग इटसेल्फ इन द एनसीईआरटीज आल्सो यू मस्ट हैव सीन कि वो शुरू में ही आपको एक सिनॉप्सिस दे देते हैं कि इस तरीके से उनका पूरा टॉपिक फ्लो करेगा, ताकि आपको एक के बाद एक चीजें पता चल जाएंगी. डिस्कशन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके माइंड में हमेशा क्वेश्चंस रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो अगर आपको वो आइडिया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप जब भी कुछ पढ़ रहे होंगे हमेशा आपके माइंड में अलर्ट रहेगा कि आप क्या
पढ़ रहे हैं और उसमें से कहां से किस क्वेश्चन का आपका आंसर निकलने वाला है। सो ये कॉन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, फिर इसके बाद में क्रिटिसिज्म, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। सो प्लेट टेक्टोनिक में सबसे पहला चीज जो हमने सिनॉप्सिस में अगर आपने देखा हो तो वहां पे सबसे पहला चीज जो था कि हमें डिफाइन करना है प्लेट को, व्हाट इज प्लेट। ओके, फिर हम टेक्टोनिक्स पे बात करेंगे, फिर ये कुछ आपके फैक्चुअल चीजें भी हैं इसमें, प्रीलिम्स के हिसाब से भी हैं, मेंस में हो सकता है जरूरत ना पड़े, जरूरत पड़ भी सकती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। सिंपली देयर मे बी क्वेश्चन व्हाट इज प्लेट, ओके, डिफाइन मेजर प्लेट्स, देयर टेरिटरीज एटसेट्रा। सो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो हम उसमें फिर यहां से बहुत सारे फैक्ट्स लेंगे। अदरवाइज अगर 150 वर्ड में क्वेश्चन है, लेट्स से दी हाउ द हॉटस्पॉट or mental plume model is able to explain or is helping in the understanding of plate tectonic theory, तो वो उसमें हमको ये सब बहुत ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो जो भी हम चीज़ें लेंगे वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंगे। टॉपिक ये बहुत बड़ा है और इससे लगभग क्वेश्चन आ रहा है, हर दूसरे साल में हमको एक क्वेश्चन मिल रहा है। और अगर इस एक टॉपिक को आप ठीक से नहीं समझते हैं तो आपको अर्थक्वेक समझ में नहीं आएगा, आपको वोल्केनो समझ में नहीं आएगा, आपको जो माउंटेन बिल्डिंग है वो समझ में नहीं आएगा। हमारे पास इंडिया से रिलेटेड भारत में जो हिमालय का निर्माण है वहां एक क्वेश्चन बनता है हाउ द हिमालयज हैव बीन फॉर्म्ड, वो आप नहीं बना पाओगे। तो या फिर डेक्कन लावा पे भी एक क्वेश्चन आया था अभी 1-2 साल पहले ही, यूपीएससी में 2-3 साल में ही क्वेश्चन है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वगैरह बताने की बात थी। तो डेक्कन लावा कहां से आया, जब इंडिया मूव कर रहा है अफ्रीका से टूट के अलग हो करके, तो वहीं रियूनियन आइलैंड पे जो हॉटस्पॉट है वहां से निकल के आया है। सो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात तो होगी ही होगी। तो आइए बात करते हैं कि प्लेट क्या है। तो प्लेट टर्म वॉज डिफाइंड बाय टूजो विल्सन। दिस कॉन्सेप्ट what is plate, how it is behaving, how it is moving. So जो टूजो विल्सन एक जोग्राफर हैं, कैनेडियन जोग्राफर हैं, जियोफिजिसिस्ट हैं, और प्लेट टेक्टोनिक्स की इवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा योगदान है उनका। तो सबसे पहला जो हमारा टर्म है, who has coined the term, I think it has already been asked somewhere in the state PCS और in UPSC prelims. So टूजो विल्सन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। दोनों वर्ड हैं प्लेट और टेक्टोनिक्स, ये दोनों वर्ड कहां से आए हैं। जो टेक्टोनिक्स है वो टेक्टोन, TEKTON, टेक्टोन से निकल के आया है, उसका मतलब होता है बिल्डर। तो वो एक ग्रीक वर्ड है, ओके, ये भी आपको याद रखना है। तो ये प्लेट डिफाइंड बाय टूजो विल्सन। प्लेट्स आर लार्ज सॉलिड लिथोस्फेरिक ब्लॉक्स। हमारे अर्थ सरफेस पे, अब मैंने क्या कहा है कि जो कुछ हमारी पूर्वापेक्षाएं हैं कि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ वाला टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है तो फिर आपको ये लिथोस्फेरिक ब्लॉक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो प्लेट्स आर लार्ज लिथोस्फेरिक ब्लॉक्स विच मूव्स एज ए यूनिट, वो एक यूनिट की तरह मूव करता है, एक साथ। जितना बड़ा ब्लॉक है वो पूरा का पूरा एक साथ मूव करता है। दे आर जाइगेंटिक, ओके, वो बहुत विशाल हैं, बहुत बड़े हैं और irregular है, means there is no definite shape of each and every plate. They each of them might be different. सब अलग अलग हो सकती हैं, okay? They are solid structure which moves over asthenosphere, plastic asthenosphere. अब internal structure of earth में जब हम देखते हैं, okay, एक शॉर्ट आपका यहाँ पे एक देखने के लिए मैंने एक स्लाइड लगाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि लिथोस्फीयर क्या है। ये हमारे अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज क्रस्ट। बियॉन्ड क्रस्ट, here this upper portion is crust, beneath that this blue line onwards we have mantle. So crust and mantle. In the mantle, the upper solid part, this upper solid part and this very crust, so these two of the things they move together. ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है जिसको हम क्रस्ट बोल रहे हैं, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये ओशनिक क्रस्ट, दोनों अलग अलग होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में आपको एकदम क्लियर होगा ये टॉपिक, ये पॉइंट। तो ये सबसे ऊपर वाला जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है या ओशनिक क्रस्ट है, ये क्रस्ट प्लस सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल टुगेदर, यू सी दिस वेरी रेड लाइन। सो ये जितना भी पार्ट है इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो ये जो लिथोस्फीयर है इट इज मूविंग ओवर प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर, ये आपका प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर है और इसके ऊपर ये मूव करता है। अब क्योंकि प्लास्टिक जैसे कि टूथपेस्ट होता है उस तरीके की परिस्थिति है ये, तो इसके ऊपर मूव हो रहा है। ओके, इसके पहले वाली स्लाइड में आप देख सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट प्लेट्स आर, इरेगुलर स्ट्रक्चर। ओके, ये अर्थ के ऊपरी वाले भाग में कई सारे ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ईच एंड एवरी वन इज
consisting of the upper crust, the upper part, the crust as well as the upper solid part of mantle. ओके मेंटल में बहुत सारी चीजें हैं, तो बस इतना ही अभी के मैं आपको बता सकता हूं, बाकी आप पुराने वीडियोस में देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर वाले अर्थ में। तो ये एक हमारा सॉलिड स्ट्रक्चर है जो कि एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव कर रहा है। ओके फिर प्लेट्स जो हैं वो ओशनिक हो सकती हैं, प्लेट्स कॉन्टिनेंटल हो सकती हैं, या प्लेट्स पार्शियली ओशनिक पार्शियली कॉन्टिनेंटल हो सकती हैं। अब आप देखिए कि ये जो प्लेट वाले जो हिस्से हैं ये ओके यहां पे देखिए प्लेट्स मे बी ओशनिक। लुक हियर, हियर इज वन अफ्रीकन प्लेट, दिस एंटायर territory is African plate. In this African plate, only this much territory is continental. Okay, this territory is continental. Okay, this territory is continental. Rest of the territory is oceanic. So plates may be oceanic, plates may be continental, and plates may be partially oceanic, partially continental. So here you can see that this African plate is partially oceanic and partially continental. Look here, this Eurasian plate, अभी मैं बताऊंगा आपको जो मेजर प्लेट्स है माइनर प्लेट है, अभी उस पे नहीं जा रहे हैं, बस हम प्लेट के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं कि प्लेट्स में भी partially oceanic and partially continental, or they may be fully oceanic, fully continental and partially also. There are many plates which are fully oceanic. Look here, this portion here, Caribbean plate, that is fully oceanic. पूर्णतः ओशनिक प्लेट है ये, इसमें कोई भी पार्ट कॉन्टिनेंटल नहीं है। यहां पे आपके पास आप नज़का प्लेट देखेंगे या पैसिफिक प्लेट देखेंगे, इट इज मोस्टली ओशनिक। ओके सो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास ओके फिर अगली बात आती है कि जो प्लेट का जो थिकनेस है वो वेरी करता है, वो 5 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक वेरी कर सकता है। ऑन एन एवरेज इन दिस थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक वी हैव अज्यूम्ड दैट द थिकनेस इज 100 किलोमीटर। एवरी नाउ एंड देन यू विल फाइंड इवन इन एनसीईआरटी इट हैज बीन मेंशन्ड कि जो प्लेट का थिकनेस है वो 100 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर एवरेज है, लेकिन ओशनिक एरिया में 5 किलोमीटर भी हो सकता है, और कॉन्टिनेंट पे कहीं कहीं मैक्सिमम जो लोगों ने बताया है वो 200 किलोमीटर तक भी बताया है। ओके सब जगह पे ये अलग अलग होता है। तो अलग अलग एक्सपर्ट्स ने भी जो मेजरमेंट किया है, सी वी आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जो भी नॉलेज है वो पार्शियल है, तो लोगों के जो कैलकुलेशंस हैं उसमें हमको कई बार डिफरेंस मिलता है। तो वैसी स्थिति में हम लोग या तो सविंद्र सिंह या स्ट्रॉलर, इन जो जोग्राफर्स हैं, इनने जो भी बताया है उसको हम लेकर के अपना एनालिसिस लिखते हैं। ओके हर एक किताब में अगर आप गूगल पे जाओगे तो वहाँ पे विकिपीडिया में आपको आंसर में कुछ मिल सकता है। सो आपको उस चीज़ का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आपको बहुत सारी द्वैधता मिलेगी, बहुत सारा डायकोटॉमी मिलेगा, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। फिर लास्ट रेजोल्यूशन हमारे पास होगा या तो एनसीईआरटी की बात मान लो, या फिर ज्योग्राफी के भगवान है हमारे पास सविंद्र सिंह, आप उनकी बात मान लीजिए, या स्ट्रॉलर की बात मान लीजिए। तो हमारे यहाँ यही सब लोग चलते हैं। स्ट्रॉलर इज ए गुड बुक फॉर फिजिकल ज्योग्राफी, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम वगैरह चैनल पे आपको इजीली मिल जाएगी। तो ये आपकी प्लेट के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं। अब इसके बाद में हम ये प्लेट हमने देख लिया है, अब इसके बाद हम टेक्टोनिक्स पे आते हैं। ये टेक्टोनिक्स क्या चीज है? टेक्टोनिक्स जो है ग्रीक वर्ड टेक्टोन से ओरिजिनेट हुआ है, और टेक्टोनिक्स में हम ऐसी कोई भी प्रोसेस जो कि अर्थ के सरफेस पे किसी भी तरीके का डिफॉर्मेशन लेकर के आए, ओके, सो दिस वेरी डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड टेक्टोनिक्स। क्वेश्चन एक आ सकता है कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स ऑन अर्थ सरफेस, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जीएस में। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर हमसे टेक्टोनिक प्रोसेसेस के बारे में बात करेगा तो आपको फोल्डिंग फॉल्टिंग की बात करनी पड़ेगी। तो क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा? इसमें इंक्लूड होगा ऐसी कोई भी चीज जिससे कि फोल्डिंग हो। ओके जब हमारे पास में सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, उन पे कंप्रेशनल फोर्स लगता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोल्डिंग। फिर फॉल्टिंग, अगर किसी जगह पर किसी जॉइंट के अलोंग मूवमेंट हो, ओके कोई जॉइंट मतलब आप फिलहाल के लिए समझ सकते हैं क्रैक, किसी क्रैक के अलोंग
मान लो कि अर्थ सरफेस पे कोई क्रैक है, उसके अलोंग अगर मान लीजिए कोई मूवमेंट है, मूवमेंट में भी वर्टिकल, मूवमेंट में भी हॉरिजॉन्टल, आइदर काइंड ऑफ मूवमेंट कैन बी कंसिडर्ड फॉल्टिंग। सो फोल्डिंग और फॉल्टिंग अगर ये होगी तो इनको ओरोजोनिक मूवमेंट कहते हैं, यानी कि माउंटेन बिल्डिंग। ओके, इससे फोल्डिंग से फोल्डेड माउंटेन बन जाएंगे और ये फॉल्टिंग से आपके ब्लॉक माउंटेन बन जाएंगे। ये टॉपिक भी अलग टॉपिक है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि टेक्टोनिक प्रोसेसेस क्या है, तो टेक्टोनिक प्रोसेसेस को अगर हमको समझाना हो तो हम इस तरीके से समझाएंगे अगर क्वेश्चन बन जाए इसके ऊपर तो। फिर लार्ज स्केल ग्रेजुअल अपवार्पिंग एंड डाउनवार्पिंग। ओके, अर्थ का जो क्रस्ट है अगर वही ऊपर नीचे हो जाए बड़े लेवल पे, ओके, तो इसको हम कहते हैं अपवार्पिंग डाउनवार्पिंग। और बेसिकली इसमें कॉन्टिनेंट और ओशन बनते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, सॉरी नॉर्थ वेस्टर्न नहीं, राजस्थान वाले एरिया का साउथ वेस्टर्न पार्ट बोल सकते हैं उसको, वहां पर अपलिफ्ट इमरजेंस हुआ है, वो एरिया सी में से बाहर निकल के आ गया है, बाड़मेर के आसपास का एरिया। वहां पे आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम रिजर्व्स हमको मिलते हैं। तो ये वो पहले ओशन का पार्ट था, वो कॉन्टिनेंट का पार्ट बन गया है। तो ये लार्ज स्केल प्रोसेसेस हैं। फिर इग्नियस प्रोसेस, इग्नियस प्रोसेस मींस वल्केनिज्म। अगर कहीं नीचे मैग्मा फॉर्मेशन होता है ना, दैट मैग्मा इज बीइंग फिल्ड इन द स्ट्रेटास ऑफ द माउंटेन, सो दैट कैन आल्सो बी इंक्लूडेड। सो दो वर्ड हैं, दोनों को आपको समझना बेहतर है तरीके से है, ताकि हम अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल पे अगर पूछ ले तो हम ये बता सकें। तो ये हुआ आपका प्लेट और टेक्टोनिक्स। और थ्योरी, तीसरा वर्ड है थ्योरी या मॉडल। अब इसको हम फैक्ट से कैसे कंपेयर करेंगे? फैक्ट क्या चीज है? ऐसी कोई भी चीज जिसके बारे में कोई ड्युअलिटी, कोई डायकोटोमी, कोई दुविधा ना हो। जैसे ये एक मार्कर है और आई कैन से आई एम अ टीचर, सो इट इज अ फैक्ट। सन राइजेस इन द ईस्ट, इट इज अ फैक्ट। ऐसी चीज जो कि फिक्स है, जिसके बारे में मतलब कोई लोगों में एक मत है। ओके, सो दैट्स अ फैक्ट। ओके, जैसे फैक्ट आपके कितने सारे फैक्ट होते हैं ज्योग्राफी में। ओके, अर्थ का साइज, शेप, ठीक है, तो ये सब फैक्ट हैं। ओके, पूरा यूपीएससी के प्रिपरेशन में भरमार है फैक्ट की। और दूसरा थ्योरी मॉडल क्या चीज है? थ्योरी, थ्योरी का मतलब ये है कि जब हम कोई एनालिसिस करते हैं तो कई बार हम कुछ चीजें अज्यूम करते हैं। ओके, वी आर प्रेजेंटिंग समथिंग एंड फॉर दैट वी अज्यूम सम इश्यूज। तो अज्यूम करने के बाद हम कुछ चीज समझाते हैं और जो भी हम कुछ समझा रहे हैं उसके लिए हम एविडेंस देंगे। लेकिन ये कहेंगे कि जो हमने अजम्पशंस माने हैं, रिगार्डिंग दीज अजम्पशन देयर विल नॉट बी एनी क्वेश्चन। ओके, तो इस कोई भी जो थ्योरी है उसमें कुछ चीजें होंगी, इनको मान लिया जाए, हम बोल रहे हैं उस चीज को भरोसा कर लो आप। ओके, तो ऐसी चीजें होंगी हर थ्योरी में। लेकिन सारा कुछ भरोसा करने वाली बात नहीं होगी। जो कुछ भी माना गया है उसके बाद कुछ आपने कंक्लूजन दिया है, whatever is the conclusion that can be checked scientifically, उसके बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके बारे में एविडेंस दिए जाएंगे। तो ये थ्योरी, इसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसने मान लिया, ये कहेगा कि जो थिकनेस ऑफ द प्लेट इज 100 किलोमीटर। ओके, सो 100 किलोमीटर मान लिए, तो अब इसमें सवाल जवाब मत करना क्योंकि हर जगह अलग अलग है। ओके, चीजें तो अब बहस करने वाली बातें अगर हैं तो वो तो फिर आप एकेडमिक जो रिसर्च है वहां की बातें हैं। यहाँ पे आप जो लेमैन को समझाने के लिए, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे समझाने के लिए कुछ चीज मान लो कि 100 किलोमीटर मोटाई है, ठीक है, हम बार बार कहाँ उसमें उलझेंगे। फिर हमने मान लिया कुछ अजम्पशन, अभी आएगा आगे, जैसे कि 7 मेजर प्लेट्स हैं। अब डिस्प्यूट है बहुत सारा, ठीक है, कोई कहेगा 6 है, कोई कहेगा 7 है। तो ये कहेगा, थ्योरी वाले लोग कहेंगे कि मान लो कि 7 हैं, ठीक। तो हम उसको सवाल जवाब नहीं करेंगे, उसके बाद वो बताएगा कि ऐसे ऐसे माउंटेन बनेंगे, इस तरीके से ट्रेंच बनेंगे, इस तरीके से वल्केनो बनेंगे। और आप वो जो भी कंक्लूजन देगा उस सब पे आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे, उसमें कोई डिस्कस नहीं है। तो किसी भी थ्योरी में कुछ अजम्पशंस होंगे, assumption cannot be questioned in future. If scientifically these assumptions can be proved, this will not remain theory, it will become fact. तो फ्यूचर में जो भी थ्योरी है वो फैक्ट बन सकती है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अभी भी थ्योरी ही है, फैक्ट नहीं है। भले ही बहुत सारी चीजें इससे एक्सप्लेन हो सकती हैं, क्योंकि इंटरनल किस तरीके से प्लेट मूवमेंट हो रहा है, कन्वेक्शन करंट किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, इस पे क्लैरिटी नहीं है अभी भी। तो इस वजह से ये थ्योरी ही है। आई बिलीव दिस कॉन्सेप्ट थ्योरी हैज बीन क्लियर नाउ। तो हमने 3 टर्म थे उनको समझने की कोशिश की। हमने समझा प्लेट, हमने समझा कि टेक्टोनिक्स, हमने समझा थ्योरी क्या होता है। तो तीनों को हमने समझा। आगे चलते हैं हम लोग।
जो इसका जो डेफिनेशन एक देख लेते हैं फाइनली, कि हमको अगर लिखना पड़ा, ये तो हमने देखो बहुत सारी बातें कर ली प्रीलिम्स के हिसाब से। अब अगर हमको मेंस के लिए लिखना पड़ा कि आप एक कुछ 20-30 वर्ड्स में डिफाइन करो व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सो इन दैट केस वी विल राइट समथिंग व्हिच इज मेंशन्ड हियर। ओके, सो इट इज द मोस्ट मॉडर्न थ्योरी or it is a universal theory which try to assimilate, which try to explain many of the geophysical phenomena। बहुत सारी जियोफिजिकल फेनोमेना को ये एक्सप्लेन करती है। कौन कौन सी जो जियोफिजिकल फेनोमेना है? अर्थक्वेक, वल्केनिज्म, माउंटेन बिल्डिंग, ट्रेंच फॉर्मेशन, आइलैंड आर्क फॉर्मेशन, मिड ओशनिक रिजेस, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। ये इतनी सारी चीजें सब ये एक्सप्लेन कर सकती है। इन सबको एक्सप्लेन करने वाली सबसे मॉडर्न थ्योरी है और ये यूनिफाइंग थ्योरी है या यूनिवर्सल थ्योरी है। क्यों? क्योंकि इसके पहले की जो थ्योरी है, लेट्स से वैगनर्स थ्योरी डू नॉट एक्सप्लेन वेरी क्लियरली अबाउट आइलैंड फॉर्मेशन। उसकी थ्योरी से हम ये भी नहीं बता सकते कि ओशन के बीच में जो माउंटेन्स हैं वो किस तरीके से बन गए, मिड ओशनिक रिजेस जिनको हम बोलते हैं, मध्य महासागरीय कटक। तो वो समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस एक थ्योरी से हम सब कुछ समझा सकते हैं। सो इट इज द मोस्ट मॉडर्न थ्योरी फॉर एक्सप्लेनिंग वेरियस जियोफिजिकल फेनोमेना। तो एक ये एकदम आसान सा डेफिनेशन आप देख सकते हैं। फिर एक और डेफिनेशन है यहाँ पे, आप चाहे तो ऊपर वाला डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ होल मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, नेचर एंड मोशन ऑफ प्लेट्स, deformation within the plates and interaction of plate margin with each other is collectively called plate tectonics। तो एक ये डेफिनेशन है, ये भी दे सकते हैं। आई बिलीव ये वाला डेफिनेशन में, क्योंकि हमारे पास हमेशा ही वर्ड लिमिट होगा, तो वर्ड लिमिट को ध्यान करके, ठीक है, आपको रखना चाहिए। और साइंस वाले टॉपिक की बात में अच्छा ये है, ब्यूटी ये है कि आप सब लोग भी एक ही डेफिनेशन लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री पॉलिटी सब्जेक्ट में आप अगर सारा एक जैसा लिख रहे हैं तो फिर मार्क्स पे बहुत फर्क पड़ सकता है उसका, लेकिन ज्योग्राफी में अब प्लेट टेक्टोनिक्स जैसे हो रहा है वैसे ही हो रहा है। सब लोगों के लिए 3 टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट ही होंगे जो कि हम नॉर्मली बात करते हैं। तो हमने समझा कि ये किस तरीके से इसमें कि हम डेफिनेशन देंगे। अब इसकी हम कुछ हिस्ट्री की बात करेंगे, कुछ कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, किस किस ने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया है। प्रीलिम्स का टॉपिक है मेनली, मेंस में आप 1-2 नाम अगर लिख दें कि ये लोग कंट्रीब्यूट किए हैं, सो दैट वुड बी सफिशिएंट। सो अल्फ्रेड वैगनर से शुरू होती है, हैरी हेस, मैकेंजी एंड पार्कर, फिर टूजो विल्सन, मैथ्यू एंड वाइन, इसके अलावा ली पिचान, फिर WJ मॉर्गन, ओके, और लास्ट में ये वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्डाइज्ड सीस्मोग्राफ नेटवर्क। ये इतने सब लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। आइए देखते हैं थोड़ा थोड़ा जो आपको याद रखना है। इसमें से ज्यादातर नाम सविंद्र सिंह की किताब में लिखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ बहुत एक्सेस में बात कर रहे हैं। इसमें लगभग नाम सविंद्र सिंह में हैं, ठीक है। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि अब यूपीएससी जो प्रीलिम्स में सवाल पूछता है उसमें आपके लिए बहुत उलझाने वाली स्थिति है। वो कहेगा कि जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से कहेगा 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो एक भी अगर आपको पता नहीं है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये नाम है, देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। ये अल्फ्रेड वैगनर है। अल्फ्रेड वैगनर की जो थ्योरी है उसी से इवॉल्व हुआ है बेसिकली ये पूरा का पूरा मॉडल। इसको क्रिटिसिज्म करने में ही लोगों ने बहुत सारी एनर्जी लगाई, मेनली अमेरिकन ज्योग्राफर्स, जियोलॉजिस्ट, और उसकी वजह से ये थ्योरी हमारी इवॉल्व हुई है। सो वेरी फाउंडेशन कम्स फ्रॉम वैगनर। नेक्स्ट है हैरी हेस। हैरी हेस यूएस नेवी में भी, फोर्सेस में भी एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हैं। सो क्योंकि वहां भी सिक्योरिटी होती है, अगर सी में कुछ होने लगे, वोल्केनो एक्सप्लोड होने लगे तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाएगा। तो ये हैरी हेस है, यूएस नेवी में थे ये, और इन्होंने एक मॉडल प्रेजेंट किया सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, the very popular notion that the continents could have moved because of this explanation वो निकल के आया। और इन्होंने होम्स जो एक वैज्ञानिक है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दिया है उन्होंने 1929 में। कुछ ईयर भी मैंने मेंशन किया है, जहां जहां मेंशन किया है वो आपको याद रखना है। हैरी हेस का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1961 में इन्होंने प्रेजेंट किया था एक पेपर, जिसके बाद में इस सारे डिस्कशन को लेके बहुत सारे लोग आगे आए और उन्होंने भी अपने अपने मॉडल प्रेजेंट किए। तो हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग कॉन्सेप्ट दिया है, प्रीलिम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर मैकेंजी एंड पार्कर, ये डैन मैकेंजी हैं, ठीक। आई कुड नॉट फाइंड द इमेज ऑफ मिस्टर पार्कर। तो ये जो मैकेंजी हैं, इन लोगों ने
एक यूलर एक गणितज्ञ हैं, इनका मॉडल को यूज करके अर्थ के सरफेस पे किस तरीके से प्लेट मूव करती है, ये इनका प्राइमरी कंट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा ये पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस कि किस तरीके से ब्लॉक्स हैं जो अर्थ के सरफेस पे जो हमारे प्लेट्स हैं वो मूव कर सकते हैं। पेविंग, आपको नाम याद रखना है, प्लेट टेक्टोनिक ही है नाम, इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक वर्ड यूज न करके ये वर्ड यूज किया है। तो ये एक इन्होंने मॉडल दिया था, ये अल्टरनेट काम कर रहे थे। हैरी हेस कहीं और यूएसए में काम कर रहे थे, ये यूरोप में काम कर रहे थे। तो एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पे लोग काम कर रहे हैं। फिर मैथ्यू एंड वाइन, इन लोगों ने एविडेंस दिया जो पैलियोमैग्नेटिज्म होता है ओशन में, हमारा जो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स को आइडेंटिफाई किया, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से ओशन के बीच वाले पार्ट में जहां कहीं भी लावा निकल रहा है मिड ओशनिक रिजेस पे, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से अलाइन हो रहा है। तो उसको पैलियोमैग्नेटिज्म को इन्होंने समझाया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है इनका। ये एक एविडेंस भी है कि प्लेट टेक्टोनिक हो रहा है उसके लिए। तो मैथ्यू एंड वाइन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद टूजो विल्सन की हम जितनी तारीफ करें उतना कम है। एक पूरी बुक लिखी जा सकती है इनके ऊपर। टूजो विल्सन ने ही प्लेट वर्ड कॉइन किया है। टूजो विल्सन ने हॉटस्पॉट मॉडल, ओके, जो आपका महाराष्ट्र में जो डेक्कन लावा प्लेटू बना है वो हॉटस्पॉट से वहाँ चीज़ें निकली हैं। या हमारे बिहार में जो राजगीर के पास में गर्म पानी के स्रोत हैं वो कैसे एक्सप्लेन हो सकते हैं, या हवाई आइलैंड पे जो ज्वालामुखी की पूरी सीरीज मिलती है वो कैसे एक्सप्लेन हो सकती है, उस सब के लिए इन्होंने एक ये हॉटस्पॉट मॉडल दिया था। इसके अलावा इन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है विल्सन साइकिल। ओके, विल्सन साइकिल में किस तरीके से बार बार कॉन्टिनेंट टूटते हैं और बनते हैं। जैसे कि एक था पेंजिया था, अभी आपने कभी सुना हो सकता है इस बारे में। एक पेंजिया था जो बना लगभग 30 करोड़ साल पहले, उसके बाद में 22 करोड़ साल पहले वो टूटने लगा। अब ये टूट करके जो नॉर्थ साउथ अमेरिका वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, अगर आप देख एटलस में समझ पाएं या इस डिस्कशन के आखिरी में समझ पाएंगे कहीं एग्जाम्पल में, तो नॉर्थ साउथ अमेरिका वेस्ट की तरफ जा रहे हैं और एक दिन वो एशिया से टकराएंगे, ऑस्ट्रेलिया से टकराएंगे। तो इस तरीके से पैसिफिक ओशन पूरा खत्म हो जाएगा, अटलांटिक ओशन वाइड होता जा रहा है। तो ये एक बड़ा सा पेंजिया फिर से बन जाएगा। तो ऐसा इसकी थ्योरी को एनालाइज करके पता लगाया एक्सपर्ट ने कि एक नहीं पूरे 6 बार अर्थ पर पेंजिया बने हैं और टूटे हैं। ठीक है, ये 6वां नंबर का पेंजिया है जो कि अभी फिलहाल टूटा हुआ है। तो इसको कॉन्सेप्ट को बोलते हैं विल्सन साइकिल। बहुत ही रिवोल्यूशनरी थ्योरी है ये, प्लेट टेक्टोनिक का एक कदम आगे वाली चीज है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में हम लोग इसको ज्यादा बात करते हैं, आप सिर्फ शब्द याद रखिए, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। फिर ये जो ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि प्लेट 3 तरीके के प्लेट मोशन होते हैं, कॉन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ट्रांसफॉर्मेशन। स्लाइडिंग पास्ट जो थ्योरी स्लाइडिंग पास्ट होता है, प्लेट्स का आपस में घिसटती हैं, वो इसने समझाया था। तो मेन जो ज्योग्राफर्स हैं इनके कंट्रीब्यूशन को भी समझना बहुत ही जरूरी है। फिर इसके बाद में ली पिचान है। बहुत ही प्रॉब्लम था कि कितनी प्लेटें हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स के बारे में जो भी इश्यूज थे उसको इन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो टोटल नंबर ऑफ प्लेट है, इन्होंने पहली बार कहा कि इसको हम लिमिटेड मानते हैं। इन्होंने कहा कि 6 मेजर प्लेट्स हैं और उसके बाद से ये थ्योरी थोड़ी सिंपल हुई। पहले प्लेट बाउंड्रीज के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी। ही इज द वन हु हैज आइडेंटिफाइड द मेजर बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स। ओके, नाम मेंशन है सब आपके सविंद्र सिंह में ये। और ये जो महानुभाव हैं WJ मॉर्गन is the one because of whom we can understand, we the layman, we the common people can understand this theory. Each one of the above mentioned geographer, they have submitted their PhD. बहुत सारा काम किया है उन्होंने, बहुत सारा लिखा है, 4-4, 5-5 हजार पेजेस में अपनी PhD दी है। उन सबको हम समझ नहीं सकते थे। उन सबको लेकर के जो WJ मॉर्गन है उन्होंने अपना एक सिंप्लीफाइड मॉडल बनाया जिसको कि हम आप समझ सकें। अजम्पशन लिए कि ऐसा ऐसा करके आप इसको समझ सकते हो। तो हम जिस तरीके से समझ पाते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का, सो द फर्स्ट सिंप्लीफाइंग वर्किंग मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय हिम। ही वाज फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। तो ये भी अगर हमको 2-3 नाम अगर देना हो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, जब अगर आप मेंस में लिखेंगे कि कौन कौन उसमें कंट्रीब्यूशन करने वाले लोग हैं, तो इनका एक नाम जरूर होना चाहिए। वैगनर से आप बात कर सकते हैं शुरू। वैगनर ने शुरुआत की, वैगनर के बाद में हैरी हेस की बात बताइए, मैथ्यू एंड वाइन की बात बताइए, ली पिचान की बात बताइए और मॉर्गन की बात बताइए। अगर इतना 2-3 आप नाम बता देते हैं तो फिर आपका काम हो जाएगा मेंस लिखने के क्रम में, अगर आपको लिखना है तो।
फिर एक चीज और ये है, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्डाइज सिस्मिक नेटवर्क। पूरे अर्थ पे बहुत सारे लगभग 650 से ज्यादा जगहों पर सीस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, जिनसे कि कहां कहां अर्थक्वेक आ रहा है, कितनी गहराई से आ रहा है, उस सब के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। तो ये पूरा जो नेटवर्क है, आप यहाँ मैप पे भी देख सकते हैं, ये स्टार लगे हुए हैं, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रहा है, या फिर ये यूएसजीएस अमेरिकन जो यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सोसाइटी के अंडर में है, या फिर ये यूएन के किसी रेजोल्यूशन के अंतर्गत में चीजें लगी हुई है, या कंट्रीज ने अपने स्टैंडर्ड लगाए हैं, या फिर कुछ प्रस्तावित वाले भी हैं, प्लांट भी, जो प्लेन स्टार है वो प्लांट वाला है। तो आपको इतना सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू कैन रिमेंबर दैट देयर इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क व्हिच कलेक्ट डाटा फॉर अर्थक्वेक्स, और अर्थक्वेक से हमको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलती है। ये हम पहले किसी क्लास में आपका डिस्कशन में आपको मिलेगा। तो ये जो सारा का सारा डिस्कशन था, ये था कि किस तरीके से जो हमारा हिस्ट्री है, ये किस किस ने कंट्रीब्यूट किया है प्लेट टेक्टोनिक के इवोल्यूशन में। अब हम बात करते हैं अजम्पशन। मैंने आपसे कहा था अभी चर्चा के दौरान कि अगर कोई भी थ्योरी है या मॉडल है तो उसमें अजम्पशन होंगे ही होंगे। मान लो, ये सब मान लेना है, इस पे सवाल नहीं करना है, ऐसा कैसा लिखना है अजम्पशन वाला पॉइंट। अगर आपसे कहा जाए कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लिखिए, तो आपको उसमें ऊपर एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी, डेफिनेशन के बाद कंट्रीब्यूटर्स के कुछ नाम बता दीजिए, फिर उसके बाद में ये अजम्पशन आएंगे ही आएंगे। तो अजम्पशन क्या है? प्लेट्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये पूरी जो थ्योरी है उसमें प्लेट क्या है? स्ट्रक्चरल भी है, स्ट्रक्चर है उनका, कुछ एक साइज शेप है, और फंक्शनल भी है, उनका कुछ फंक्शन भी है, मूवमेंट होता है उसमें, कुछ घूमना फिरना आना, सामने से आके टकराती हैं, दूर जाती हैं, आपस में घिसटती हैं। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है प्लेट टेक्टोनिक्स में। ओके, प्लेट्स आर 100 किलोमीटर अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ विच मूव्स ओवर प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर। जो हमने पहले डिस्कशन किया है प्लेट के बारे में, तो उसमें हमने वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया था। अब ये मैंने एक जगह पे आपको पॉइंट लिख दिए हैं, ताकि अगर आपको मेंस का राइटिंग करना है तो 5-7 जो भी अजम्पशन चाहिए आपको बढ़िया सिस्टमेटिक, तो ये यहाँ पे आपको एक लाइन में बता देना है कि प्लेट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। देन कन्वेक्शनल करंट बीइंग फॉर्म्ड इन द मेंटल आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, सो कन्वेक्शनल करंट अभी हम देखेंगे, जो मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, रीजंस फॉर प्लेट टेक्टोनिक्स वाला जो अभी डिस्कशन आएगा आगे, उसमें हम बात कर पाएंगे कि कन्वेक्शनल करंट किस तरीके से प्लेट्स को मूव करा रही हैं। फिर ऑल जियोफिजिकल फेनोमेना, ये मान ले रहा है इसने कि अर्थक्वेक, वोल्केनो, माउंटेन बिल्डिंग, ट्रेंच फॉर्मेशन, आइलैंड आर्क फॉर्मेशन, जो भी कुछ हो रहा है प्लेट टेक्टोनिक में, जो भी कुछ होता है वो सब का सब प्लेट मार्जिन्स पर होता है। प्लेट मार्जिन्स, ये एक प्लेट है, एक ये दूसरा प्लेट है, तो इन दोनों, ये दोनों जहां मिलते हैं दैट इज द प्लेट मार्जिन, किनारे पर। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पहले शुरुआती दौर में ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि बीच में अगर कुछ हो रहा है, लेट्स से अगर इंडिया के बीच में अर्थक्वेक आएगा, तो उसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्सप्लेन करने की पोजीशन में नहीं था। आप जैसे कि यहां इसी, अगर हम इसमें देखें, here is the African plate. In African plate, if earthquake is taking place here, plate tectonic cannot explain. Plate tectonic can explain earthquake only in case if it is taking place along plate boundary. ये प्लेट की बाउंड्री है, किनारा किनारा। ओके, ये अफ्रीकन प्लेट है और ये आपका इधर साउथ अमेरिकन प्लेट है। अभी हम देखेंगे जो हमारे टोटल कितने प्लेट हैं उस वाले अजम्पशन में ये आएगा अभी पॉइंट। तो प्लेट के किनारे पे जो होगा वो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे इससे, अदरवाइज और दूसरी चीजें ये एक्सप्लेन नहीं करता। प्लेट्स आर एंटायरली ओशनिक, एंटायरली कॉन्टिनेंटल और पार्शली ओशनिक, पार्शली कॉन्टिनेंटल, अभी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर इसने अजम्पशन कर लिया है कि 7 मेजर प्लेट्स हैं। ओके, तो 7 मेजर प्लेट आइए देख लेते हैं। पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ओके, अंटार्कटिका प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ओके, सो हियर आर द 7 मेजर प्लेट्स। तो इनने कहा कि 7 मेजर प्लेट्स हैं, कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं, ओके, और कुछ माइक्रो प्लेट्स हैं। ओके, सो तो ये हमारे पास में इनकी अजम्पशन में मेजर प्लेट्स हमने देखे। माइनर प्लेट्स, जो कुछ 6-7 माइनर प्लेट्स, इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स बताए जाते हैं। फिलीपींस प्लेट, आइए उसी इमेज में हम लोग देख लेते हैं।
इसी में यहाँ पे कैरेबियन प्लेट, यहाँ कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, स्कोटिया प्लेट, यहाँ फिलीपीन प्लेट और यहाँ पर एक अरेबियन प्लेट हमको मिलेगा। सो ये प्लेट्स आपके माइनर वाले प्लेट हैं, इनको आपको याद रखना है। और कुछ माइक्रो प्लेट्स भी हैं, उनमें से एक को आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे जुआन डी फूका प्लेट है, क्योंकि इस पे काफ़ी रिसर्च हुआ है। यूएसए में कैलिफोर्निया स्टेट है यहाँ पे, जहाँ बर्कले वगैरह यूनिवर्सिटी हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। तो चूंकि यूनिवर्सिटी में पीएचडी तभी मिलेगा आपको जब आप ओरिजिनल काम करोगे कुछ, तो उस वजह से ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमको रिसर्च देखने को मिलता है। इट इज स्मॉलेस्ट प्लेट बट वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड प्लेट। और तीनों तरीके के प्लेट मार्जिन हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके, अब ये कहता है कि 3 तरीके के प्लेट इंटरेक्शन होते हैं, कॉन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 3 तरीके के प्लेट के जो इंटरेक्शन होते हैं इस प्रोसेस में। फिर लास्ट अजम्पशन है, अर्थ क्रस्ट इज बीइंग क्रिएटेड एट मिड ओशनिक रिजेस, जो मध्य महासागरीय कटक हैं। आप जो इस इमेज में अगर हम देखें, यहाँ जितने भी ओशन हैं इनके बीच में हमको मिड ओशनिक रिजेस मिलते हैं। आगे जो हम डाइवर्जेंस वाला जो इमेजेस देखेंगे वहां हमको ये और क्लैरिटी आएगी। तो वहां पर मिड ओशनिक रिजेस पर अर्थ क्रस्ट क्रिएट होता है एंड एट ट्रेंचेस, जहां कहीं भी ट्रेंचेस हैं, इन ट्रेंचेस अर्थ क्रस्ट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। सो ये बेसिकली 8 अजम्पशंस हैं इस थ्योरी में। तो इस डिस्कशन के साथ ही हम हमारा पहला जो पार्ट इस थ्योरी का है वो कंप्लीट करते हैं। ब्रेक के बाद हम जो बाकी वाला जो हिस्सा है उस पर हम इस पर चर्चा करेंगे।